Good morning. Today we are back with the description of Lorentz force, Biot-Savart law, and Ampere's law. As I told you in my last lecture that these particular topics are in the syllabi of BSc Part 1st of Maharaja Ganga Singh University. Almost all university syllabi cover these topics, so it is interesting to discuss about these. पिछली लेक्चर में हमने ये कहा था कि किसी भी आवेशित कण के ऊपर कार्य करने वाले जो लॉरेंज बल जिसको हमने कहा था उसका मान Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब का रोल है इस फोर्स की कैलकुलेशन में। अब देखिए यहाँ पर यह भी संभव है कि कोई पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा हो तो उसके ऊपर रिजल्टिंग जो लॉरेंज फोर्स है वो जीरो हो, और ऐसे केस में ये जो इक्वेशन है वो ये सजेस्ट करती है इफ E इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस बी देन रिजल्टिंग फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो. It is possible only if the magnitude of velocity of the particle is equal to the ratio of electric and magnetic field. That is, if velocity of particle is equal to the electric field divided by the magnetic field, then such condition is possible, and this is the famous condition which we will discuss later on, is used in various various apparatus which were developed on the basis of electricity and magnetism. अब हम बात करते हैं बियो-सावर्त नियम की। ये देखा गया कि जब कभी भी किसी धारावाही में से धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास में रखी हुई जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित होती है। यह इस बात को प्रदर्शित करती है कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। It is called as magnetic effect of current in the books of physics. भौतिक शास्त्र की किताबों में इसे धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से भी कई लेखकों ने लिखा है। 1820 के अंदर पहली बार यह प्रेक्षण वैज्ञानिकों को मिला और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में बियो-सावर्ट नाम के वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया, इसीलिए इसे हम बियो-सावर्ट के नियम के नाम से भी जानते हैं, जो ये कहता है कि किसी भी धारावाही के अल्पांश के कारण इससे एक निश्चित दूरी के ऊपर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण या मैग्नेटिक फील्ड का जो मान है वह उस धारावाही के अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनके बीच का जो एंगल है साइन थीटा उसके समानुपाती, इसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती, that is the magnetic induction delta B is directly proportional to current, directly proportional to the length of the segment, and mathematically it looks like this. It is directly proportional to the current flowing in the element, that is proportional to I, proportional to the length, proportional to sine theta, and it is proportional to 1 upon r square. If you combine all these, you will get I delta L sine theta divided by r square. If you remove this proportionality sign and if you put sign of equality, you will have to write a constant, and this constant in physics is known as mu 0 divided by 4 pi, whose value is fixed. Of course, this is in vacuum, mu 0 divided by 4 pi, and if medium is present, accordingly we will have mu 0 mu r. Mu r is the relative permeability of the medium. This mu 0 upon 4 pi is 10 to the power minus 7 in a rationalized MKS system. So knowing value of current,
the length of the segment, the sine theta, and the distance, you are able to calculate about this. One more integral equation is available for calculation of the magnetic field due to the whole conductor by the entire length of the conductor, in which we calculate B by using this integral of delta B. Now, in order to represent the relation between the magnetic lines of forces, direction of current, we have the famous Maxwell's right hand screw rule, according to which if you hold the conductor in your right hand, then this is the direction of current, this is the direction of magnetic lines of forces, and of course if you hold this in your right hand, then this type of situation will appear. Now, for calculation of electric field due to static charge, we have Coulomb's law, and for calculation of magnetic field, we have Biot-Savart law. You can compare the two. At one stage, the current is flowing in wire, and in the other stage, the static charge is present, placed at certain point. Here, the electric field is calculated by using this formula. By integrating this, magnetic field is calculated by using this formula. So you can find a kind of similarity between the Biot-Savart law and Coulomb's law. Both follows the inverse square law, that is, in both cases the field produced is directly proportional to 1 upon r square. It is inversely proportional to, in other words, you can say inversely proportional to the square of the distance. So in the language of physics, we call it as that inverse law is followed in both cases. Because magnetic lines of forces, magnetic field is created near a conductor. So if you place two current carrying conductors near to each other, what is going to happen? The magnetic force between two parallel current carrying conductors can be calculated by using the formula. You can consider that this conductor is placed in the magnetic field created by the current which is flowing through the first. So what we do is we write the value of magnetic field which is created around this, and whenever you place any current carrying wire in magnetic field, what happens? A force is observed on it, and that force you can calculate. So accordingly, force of attraction or repulsion will be calculated between two parallel wires. This is the formula, mathematical formula, with which you can calculate the value of force μ0 divided by 4 pi, the product of the current which is flowing through the two conductors, and from here you can calculate the value force per unit length, and that is this given by this, and accordingly you have the result. Then the value of force, of course, will depend on the magnitude of current flowing between the two, but whether the force is attractive or repulsive, that will be decided by the direction of current which is flowing through the conductors. Or in other words, you can say whether the two will attract or repel, you can calculate by the direction of force using the simple laws. जहाँ तक बल के परिमाण का सवाल है, वह इन दोनों में से बहने वाली धारा के ऊपर निर्भर करता है और दोनों के बीच की दूरी के ऊपर निर्भर करता है।
धारा पता हो, दोनों में से प्रवाहित होने वाली दूरी पता हो, तो आप बड़ी आसानी से इन धारावाहियों के मध्य कार्यरत आकर्षणी अथवा प्रतिकर्षणी बल की गणना कर सकते हैं। वह बल आकर्षणी होगा अथवा प्रतिकर्षणी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों चालकों में से बहने वाली धारा एक ही दिशा में है अथवा विपरीत दिशा में है। और इसकी गणना भी आप बड़ी आसानी से जो धारावाही चालक के ऊपर कार्यरत बल का फॉर्मूला है, दैट इज F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ यह माना जाता है कि एक चालक में से बहने वाली धारा के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरा धारावाही चालक रखा हुआ है जो आकर्षणी अथवा प्रतिकर्षणी बल का अनुभव करता है। इसके आधार पे हम एम्पियर की परिभाषा भी दे सकते हैं कि यदि मान लीजिए दोनों चार धारावाहियों में से बहने वाली जो धारा है वो 1 एम्पियर है, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज अराउंड 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। अर्थात यदि दोनों धारावाही चालकों में से प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर है, या उल्टा कहें कि यदि दो धारावाही चालकों में से एक समान धारा प्रवाहित हो रही है और उनके प्रति एकांक लंबाई के ऊपर कार्य करने वाले बल का मान 2 इंटू 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर है, तो प्रत्येक में से प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर के बराबर होगी। दिस इज हाउ द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर इज गिवन बाय यूजिंग द सिंपल कैलकुलेशंस। इस प्रकार के इस सूत्र से हम जो 1 एम्पियर है उसकी परिभाषा भी दे सकते हैं, उसकी गणना भी कर सकते हैं, जो इस बल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के आधार पे जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो भी दिया जाता है कि एम्पियर का नियम ये कहता है कि जब कभी भी किसी धारावाही में से धारा प्रवाहित होती है तो उस धारावाही के अराउंड जो लाइन इंटीग्रल B डॉट dl है वो इसमें से बहने वाली समस्त धाराओं की बीजगणितीय योग का μ0 गुना होता है। दैट इज कि लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू μ0 इंटू, अगर एक धारा है तो I लिखेंगे, बहुत सारी धाराएं हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे समेशन I। समेशन I ये साइन कन्वेंशन से लिया जाता है। अगर एक दिशा में बहने वाली धारा को आप पॉजिटिव लेते हैं तो उसके ठीक विपरीत दिशा में बहने वाली धारा को हम नेगेटिव लेंगे और अकॉर्डिंगली हम धाराओं का योग कर लेते हैं और इसी के आधार पर हम एक वृत्ताकार कुंडली में से बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय प्रेरण की गणना कर सकते हैं और इसी का उपयोग करते हुए हम किसी बहुत लंबे धारावाही के कारण उससे r दूरी पर चुंबकीय प्रेरण की गणना भी कर सकते हैं। ये जो सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो जो आपके स्कूल लेवल की क्लासेस थी, दैट इज 10th 11th 12th, वहाँ पर भी आप करते थे। सिमिलरली इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए इस मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशंस आपकी किताब के पीछे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे किसी भी ऑथर की आप बुक ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, चाहे हिंदी मीडियम की हो चाहे इंग्लिश मीडियम की हो। पिछली टर्म पे हमने किताबों के बारे में भी डिस्कस किया था, तो वो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये सीधा सीधा रिलेशन है करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो कि ये क्रिएट कर रहा है उसके अंदर। इससे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात जब हमने की थी तो वहाँ आवेश का संबंध सीधा सीधा विद्युत क्षेत्र से था कि अगर हमें आवेश की संरचना पता हो कि आवेश एक बिंदु आवेश के रूप में है या रेखीय आवेश के रूप में है या गोलीय आवेश के रूप में है या बेलनाकार आवेश के रूप में है,
तो उसके कारण अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर धारावाही चालक की क्या शेप है, क्या किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कारण भी हम उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय प्रेरण का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है और आगे चल के वैज्ञानिकों के लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस को करने में इन नियमों का हम प्रयोग करते हैं। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये जो एम्पियर का नियम है, इसमें आगे चल के संशोधन भी किया गया और जो आपकी मैक्सवेल की चौथी समीकरण को बनाने के लिए हमने बेसिकली ऐसा जो करेक्शन है वो किया था। तो मैक्सवेल की जो समीकरण है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो गाउस लॉ है, फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स का जो गाउस लॉ है, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम और ये जो एम्पियर का नियम है, बेसिकली ये चार हैं जिनका की मैथमेटिकल फॉर्म है, जिनका गणितीय स्वरूप है। इसीलिए कई ऑथर्स इसको डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशंस के रूप में भी डिस्क्राइब करते हैं। तो जितनी भी हायर कैलकुलेशंस हैं वो इन चार मैथमेटिकल जो इक्वेशंस हैं उन पर आधारित होती हैं। व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, चार मैथमेटिकल इक्वेशन लिखिए और फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके उन मैथमेटिकल जो इक्वेशंस हैं उनको आप सॉल्व कीजिए और एक परिणाम तक आप पहुंच जाएंगे, एक कंक्लूजन तक आप पहुंच जाएंगे, जिसकी फिर आप प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी बना सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाई गई है कि एक स्ट्रेट धारावाही हो तो उसके कारण हम किस प्रकार से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। जितने भी ऑथर्स हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ब्रिजलाल सुब्रमण्यम हो, चाहे आपके हिमांशु पब्लिकेशन की बुक्स हो या और कोई भी किताब हो, कॉलेज बुक हाउस हो, रमेश बुक डिपो हो, उन सब में इस तरह के उदाहरण थ्योरी की कैलकुलेशन में अथवा जो सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ पर भी दिए हुए हैं। धारावाही जो लिए हुए हैं वहाँ पे आपको या तो वृत्ताकार कुंडली की संरचना के होंगे और या फिर एक स्ट्रेट लाइन जो कंडक्टर है उसके आकार के होंगे, जिस पर आपको कैलकुलेशन के फॉर्मूले लगाने हैं और बहुत पॉपुलर हैं, जो छोटी क्लासों में थे। करीब करीब वही फॉर्मूले यहाँ पे आपको दोबारा से वो करने होंगे और बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सिंपल इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर आपको अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट जब भी हम बात करेंगे तो इसी चीज़ को हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने जैसा पहले भी आपको कहा था कि बेसिकली इस पूरे जो किताब है, पूरी जो चैप्टर हैं, पूरी जो यूनिट्स हैं, उसका थीम ये है हाउ टू कैलकुलेट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दो को कैलकुलेट करने की जो कला है, जो विद्या है, वो इस पूरे पेपर में जो ऑथर्स हैं उन्होंने या सिलेबस बनाने वालों ने ये करने की कोशिश यहाँ पे की है। थैंक यू।